हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम टीसीएस डिजिटल के इंटरव्यू एक्सपीरियंस को शेयर करने वाले हैं, बट उससे पहले आप यहाँ पर इंटरव्यू के जो नोट्स हैं उसमें आप एनरोल कर सकते हो। आपको लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी, इसमें सभी नोट्स अवेलेबल हैं। ये आपकी प्रिपरेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। यहाँ पर आपको एक ई बुक भी मिल जाएगी, ऊप्स के नोट्स हैं, प्रोग्रामिंग के नोट्स हैं, एसटीएल कलेक्शन फ्रेमवर्क के नोट्स हैं, एचआर क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाएंगे, डीएसए थ्योरी, प्रोजेक्ट बेस्ड क्वेश्चन, सीएस फंडामेंटल्स, एसक्यूएल क्वेरीज, कंप्यूटर साइंस, कोडिंग शीट, सब कुछ आपको मिलने वाला है। देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स टू प्रिपेयर। ऑल्सो ई बुक आपको मिल जाएगी जिससे आप कम से कम टाइम में भी यहाँ पर प्रिपेयर कर सकते हो अपने टीचर्स के इंटरव्यूज के लिए। लिंक इसकी मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। आगे चलते हैं वीडियो की तरफ। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल के एन अकेडमी। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टीसीएस एनक्यूटी एंड टीसीएस निंजा, राइट। टीसीएस निंजा के इंटरव्यू एक्सपीरियंस के बारे में। टुडे वी हैव Seraj एंड ही हैज क्रैक्ड टीसीएस निंजा एंड ही गॉट प्लेस्ड इन टीसीएस. So we are going to discuss about the full interview experience. He will talk about the full interview process, like how he cracked the TCS Ninja. Hi Seraj, good evening to you. How are you doing? Good evening. I'm doing fine. Just come from office. Okay, okay. So we can start your interview experience and you can share your interview experience to our audience, like how you applied in the TCS and how you Uh, cracked the TCS Ninja. okay. So first I applied through off-campus opportunity. Okay, In January, I have given paid NQT as well, but I okay, did not score good. And in April, free NQT come. In April, I apply off-campus. okay, Um, and after that, the exam held in May. So okay, I was preparing since December only. I was preparing some aptitude questions as well as coding is also going on because I'm preparing for placements as well. So I'm doing DSA alongside as well. okay, So so my exam was 6th May, I think. Yeah, 6th May. So there are two sections. One is aptitude and one is coding. In aptitude, there are two sections again. One okay, is basic aptitude and one is advanced. In basic, we have numeric ability and reasoning ability and verbal ability. So I started with verbal ability while giving exam because it's easy topic. So I started with easy. There are 25 questions for three sections, okay, total 35 questions. So so I started with verbal ability, then reasoning and numeric ability. After that, the advanced aptitude part is there. They combine reasoning and numeric question. Combined, they have like 25 questions. So after that, we have to attempt advanced aptitude. okay, Then I got asked two coding questions. So one was easy and one was like medium hard. So okay, one is just like on array, or one is they have given a recursion questions, which is like when you optimize with the DP na dynamic programming. okay, So will all the test cases might be run, but mine first question was like all test cases are passed. okay. In the second questions, only 2 to 3 test cases are. Some hidden cases are still. Okay, so basically you have mentioned that there was like two sections, like aptitude was different and coding section also, two Yeah, section will be there. So like you mentioned that you have solved the advanced aptitude for this numerical ability, verbal yeah. ability first, right? So is there any like sectional criteria, like like what section will come first or what next? So is there no criteria, right? You can choose No, any no. of. You can choose. You can choose any of the three. You can start. Okay, so The there was like aptitude, verbal and reasoning, right? yeah, yeah. So like you can switch the section directly. Directly. Okay, and what Can was the directly time? switch from. Okay, Can directly switch from basic aptitude to advanced section. okay, okay. And In section you can switch. there was any sectional timing or not? Yeah, for 60 minute the basic aptitude question. I think 60 minutes. 60-minute basic aptitude question, like Yeah. total aptitude section or like separate section, like advanced aptitude, some different timing, verbal for different timing. There it was like that. I cannot recalling it right now, but I think there is 1 year gap na, right now. So Okay, I yes. think there is a total 1 hour for this three sections. Total 1 hour for the aptitude section, and Yeah, then after that one you can switch the coding assessment also. So yeah, and coding assess, okay, that is for 1 hour. that is for 1 hour. So coding questions, like two coding questions, and
हाँ, What, like, is there any option like you have to choose for the programming language? So there was option, right? yeah, there was an option. You have Java, C++, Python, and Go. Hmm. Okay, There are go. four languages. Okay, four languages, and like you can choose any of the language. You can choose any. Okay, so you have correct, like you have like what was the question base main topic was like array or string? There are two questions. Okay. So first question is usually very easy level, like array Hmm. or string. Hmm. So it was easy question. And the second one is like medium to hard level. It depends on your batch as well. Okay. Sometimes both of the question, some of my friends got both the question easy, Hmm. and some get both the question like hard level. They Okay. got like trees or dynamic programming questions only. Okay, so like we can like say like a TCS also including trees or graph questions in the coding assessment also. Yeah, it depends on the which session you give the exam. Sometime morning session might be hard or evening session may be easy. It's depend on luck, but till they average everyone. Like what it does, if any session got easy level questions and one is got hard level questions, so they will manage. You don't have to take care Okay. of that. Okay. So basically after like TCS NQT your exam, like what was Mm. the time gap like you got the interview schedule mail? Like what was the next process? Any survey or Yeah. any direct interview mail you got? तो 6 मई में मेरा एग्जाम हुआ, तो हाँ. उसके बाद 28 मई को फर्स्ट मेल आया. Okay. So on 21st, like I got document ready survey. Document So ready. Okay. in yeah, in that survey they ask for like mark sheet Hmm. and normal questions like that. Whichever week you will be available. Are you compatible with like you have to like prior give like preference to location for interview. There are Okay. 3 to 4 locations. You have to choose one of the. ओके सो बेसिकली तुम्हारा जो एग्जाम हुआ था इट वाज ऑन 5th ऑफ मई उसके बाद हाँ, यू गॉट द मेल 28th ऑफ मई राइट या सो देयर वाज लाइक 28 अप्रॉक्स 22 or 20 days difference so we 20 to can 20. assume that like within 2 weeks we'll get the response. Yeah, 2 to 3 week you will definitely get. ओके सो जो नेक्स्ट जो प्रोसेस होता है वो डॉक्यूमेंट का मिल आता है दैट यू हैव टू रेडी विथ योर सर्व डॉक्यूमेंट फॉर द इंटरव्यू राइट सर्वे. ओके. तो सर्वे हाँ. का 28 मई को आया. हाँ. फिर उसके तुरंत बाद 6 जून को हाँ. मुझे इंटरव्यू का मतलब इंटरव्यू के लिए अगेन मेल आया. ओके. उसमें मेंशन था कि आपका अभी इंटरव्यू के लिए सिलेक्शन हो गया है. हाँ. हाँ. 28 मई में जो आया था उसमें कोई भी ऐसा मतलब लिखा नहीं था मेल में आपका सिलेक्शन हो चुका हाँ. है. हाँ. बस प्रोसेस में है ऐसा दिखा रहा था कि ये एनक्यूटी की ओके. प्रोसेस है. यस उस यस. 6 मई तक मुझे कंफर्मेशन हुआ कि मुझे इंटरव्यू का कॉल आ गया है, मेरी शॉर्ट लिस्टिंग हो गई. ओके. प्रॉपर शॉर्ट लिस्ट वाला मेल आया 6 मई को. ओके. और उसके बाद मुझे 17 जून को इंटरव्यू का मेल आया इनवाइट का. और मेरा लाइक 20 जून को मेरा इंटरव्यू था. ओके सो जैसे कि सबसे पहला जो टेस्ट के बाद आपको मेल आया उसमें कुछ ऐसा मेंशन नहीं था कि आप शॉर्टलिस्ट हो गए हैं, उसमें ओनली डॉक्यूमेंट रेडी का हाँ, मेल हाँ, था राइट. उसमें बस ये टीसीएस इनक्यूटी की प्रोसेस है और डॉक्यूमेंट रेडी वाला मेल था. ओके सो आपने जैसे डॉक्यूमेंट रेडी मतलब डॉक्यूमेंट मतलब उसकी उसमें कुछ फॉर्म फिल करना था या फिर नॉर्मली एक मेल आया था प्रॉपर. एक गूगल फॉर्म फिल हाँ. हाँ. करना था. ओके. और मैंने ये ऑब्जर्व किया उस टाइम कि अगर तुम्हें वो डॉक्यूमेंट रेडी सर्वे वाला मेल आया तो तुम्हें इंटरव्यू आएगा ही आएगा. ओके. या फिर तुम नेक्स्ट डे पोर्टल पे जाके चेक कर सकते हो. हाँ. अगर तुम्हें कैंडिडेट बैच करके आया है यस. तो ऑलमोस्ट शॉर्टलिस्ट हो चुके हो तुम मतलब. शॉर्टलिस्ट हो चुके हैं. या आई कैनॉट से 100% बट हाँ. लाइक मेरे जितने भी दोस्त थे जिनको यस. आया कि कैंडिडेट बैच उन सबको इंटरव्यू आया ही आया. यस यस इट इज करेक्ट बिकॉज अभी करेंटली क्या है कि ऑलमोस्ट स्टूडेंट्स गेटिंग लाइक जिनको भी ऐसा स्टेटस है अगर आप चेक करना चाहते हैं तो नेक्स्ट स्टेप पोर्टल पे अगर बेस्ट दिखाता है इट मींस यू आर शॉर्टलिस्ट और उन्हीं स्टूडेंट्स को डेफिनेटली मेल भी आया है इस टाइम पे हाँ, ऐसा ही हुआ है. बिल्कुल, बिल्कुल, सो बिल्कुल सही है. उस जो आपने फॉर्म फिल किया राइट तो उसमें प्रेफरेंस दिया था इंटरव्यू का राइट लोकेशन का प्रेफरेंस. हाँ, लोकेशन का. ओके सो लोकेशन का प्रेफरेंस देने के बाद आपको 6-7 दिन में फिर से मेल आ गया है लाइक इंटरव्यू के लिए राइट. डायरेक्ट इंटरव्यू कॉल आ गया फिर. ओके सो इंटरव्यू जो कॉल आएगा उसमें मतलब ऐसे प्रोफाइल बेस्ड आता है या फिर नॉर्मल आएगा कि टीसीएस का इंटरव्यू या फिर कोई प्रोफाइल मेंशन रहती है.
वो उस मेल में आपकी प्रोफाइल शॉर्टलिस्टिंग जो हो गई है हाँ वो हाँ। मेल में आ जाएगी। ओके, मतलब कि कौन सी प्रोफाइल के लिए आपका शॉर्ट लिस्टिंग हुआ है? हाँ, कुछ ओके। कुछ केसेस में ऐसा भी दिखता है कुछ लोगों को आती भी नहीं है। हाँ ये हाँ। टीसीएस का कभी कभी रैंडम हो जाता है, कभी कभी ओके। मतलब हाँ। बहुत सारे कैंडिडेट होते तो कभी कभी डिपेंड करता है एचआर के ऊपर भी। हम्म। कुछ कुछ एचआर है बहुत ही डिटेल्स में पूछते हैं हाँ और आपको रीशेड्यूल इंटरव्यू करने का मौका भी देते हैं, क्योंकि हाँ। कुछ लोगों के ओरल एंड सेम एग्जाम भी चालू रहते हैं, तो कुछ हम्म। लोगों को चांस भी मिलता है रीशेड्यूलिंग का। कुछ ओके। कुछ एचआर होते हैं जो चांस देते ही नहीं है। ओके, दिस इज मतलब द डेट। अगर जैसे आपका इंटरव्यू किसी डेट को हुआ है तो आप उसको मतलब मेल करके रिशेड्यूल करवा सकते हैं, बिकॉज ऑफ अगर आपका कुछ हाँ, वर्क होता है, एग्जाम वगैरह होते हैं, तो चांस रहता है। चांस रहता है, एक एक चांस, क्योंकि मेरे हाँ। कुछ फ्रेंड का उसी दिन ओरल या फिर प्रैक्टिकल या फिर एंडसेम था, यस। अलग अलग कॉलेज में हाँ जो हाँ। फ्रेंड्स, वो लोग का मिस हो गया। ओके, तो उनका फिर रिशेड्यूल नहीं हुआ? रीशेड्यूल नहीं हुआ, और एक दो केसेस ऐसे थे जिनका सेम एचआर था मेरे जैसा, हाँ पुणे हाँ। रीजन में। तो वो एचआर ने समझ लिया और उनने शेड्यूल किया अगले बैच में, तो उनका ओके। जुलाई में इंटरव्यू हुआ। ओके, मतलब चांस रहता है बट डिपेंड्स ऑन द एचआर कि वो रिशेड्यूल करते हैं या फिर नहीं हाँ, करते हैं। नहीं। ओके, सो जैसे मतलब आपकी जो इंटरव्यू का मेल आया था उसमें प्रोफाइल मेंशन थी, मतलब कि जो कि टीसीएस निंजा के लिए आपको इंटरव्यू आ रहा है। हाँ, उसमें मेंशन था। आपके कोई ऐसे फ्रेंड्स जिनको मतलब डिजिटल या फिर प्राइम का आया हो, किसी को? हाँ, मेरे एक फ्रेंड था, उसको भी डिजिटल का आया था। और हम दोनों की प्रोसेस सेम ही थी, ऑलमोस्ट हाँ। एक ही डे पे सब मेल आते थे। तो मतलब मतलब क्या होता है, क्या क्राइटेरिया वो रहते हैं कि किसको डिजिटल का आएगा, किसको प्राइम का आएगा, किसको निंजा का आ सकता है, मतलब को किस बेसिस पे वो ऐसा शॉर्टलिस्ट करते हैं इंटरव्यू के लिए? तो इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्टिंग आपके परफॉर्मेंस पे होती है, जो भी ओके। आप एनक्यूटी में दोगे। तो हम्म। बेसिकली आपको ऐसा नहीं है कि कोडिंग दोनों क्वेश्चन कर लिए तो इंटरव्यू का कॉल आ जाएगा। हाँ हाँ। एप्टीट्यूड इज मस्ट। ओके। और एप्टीट्यूड में भी ऐसा नहीं है कि कम मार्क्स है, हाँ एप्टीट्यूड में भी डिजिटल वालों का वो अलग से कट ऑफ लगाते हैं हाँ। हाँ। और निंजा वालों का अलग से कट ऑफ लगाते हैं। ओके। ये मुझे अभी टीसीएस ज्वाइन करने के बाद जब मैं एचआर से बात किया तो मुझे हाँ मालूम चला कि डिजिटल वालों का 2-3 मार्क्स या फिर 4 मार्क्स का डिफरेंस रहता है। अगर 25 क्वेश्चन है न्यूमेरिक पे, हाँ। तो सपोज निंजा का कम से कम 13 से 15 तक लगेगा। ओके। डिजिटल डिजिटल का पकड़ के चलो 18 से 19 के आसपास, और प्राइम का 21, 21 या फिर 20, 20 मतलब 21 बीस पकड़ इक्कीस के चलो। क्वेश्चन सॉल्व होना चाहिए? हाँ, ये तो अभी बैच के हिसाब, सेशन के हिसाब से हाँ हाँ। ये कम ज्यादा हो जाएगा। बट ओके। ऑलमोस्ट आपको पकड़ के चलना है, अगर डिजिटल चाहिए तो 17-18 के आसपास तो चाहिए मिनिमम। ओके। और शॉर्ट लिस्टिंग के लिए कम से कम 13 प्लस। 13+ क्वेश्चन सॉल्व होना चाहिए एप्टीट्यूड में? हाँ, एटलीस्ट 13 प्लस। अगर सपोज ऐसा कि अगर आपके इंटरव्यू में मतलब जो एप्टीट्यूड है उसके काफी सारे क्वेश्चन सॉल्व आपने कर दिए, लगभग 20 से प्लस, और बट आपने कोडिंग का कोई क्वेश्चन, एक भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाया, तो क्या चांस बन सकते हैं किसी भी प्रोफाइल में शॉर्ट लिस्टिंग के? तो आपका सिर्फ निंजा का ही चांस बनेगा। मतलब विदाउट तो कोडिंग? विदाउट कोडिंग, निंजा का ऐसा है कि वो लोग कोडिंग को मतलब देखते नहीं है हाँ कि हाँ। बस एप्टीट्यूड पे ही है। ओके, बस एप्टीट्यूड पे ही शॉर्ट लिस्टिंग हो जाती है। मतलब मेरा अगर आपने कोडिंग नहीं कर पाया तो भी हो जाएगा शॉर्ट लिस्ट? हाँ, अगर ओके। आपका कोई भी एक भी टेस्ट केसेस रन नहीं हुआ है बट हाँ हाँ। एप्टीट्यूड दोनों सेक्शन में अच्छा किया है, हाँ हाँ। बेसिक सेक्शन एंड एडवांस सेक्शन, तो आपकी शॉर्ट लिस्टिंग के चांसेस है, हो जाएंगे, आपका चांस ऑलमोस्ट हो जाएगा। ओके। ओके। और कोडिंग का ऐसा है कि कोडिंग डिपेंड करता है। कभी कभी दोनों क्वेश्चन के सारे टेस्ट केसेस रन हुए हैं मेरे कुछ दोस्तों के, हाँ हाँ। फिर भी उनको डिजिटली आया है, प्राइम आया है ऐसा नहीं है। ओके। ओके। तो सेशन वाइज भी कट ऑफ निकलता है कभी कभी। ओके। ओके। एंड ऐसा भी हो सकता है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को ऐसे डाउट्स आते हैं कि उनका रीजनल बेस पे क्या होता है, कभी कभी डिले हो जाता है, कि उनका पूरा ऑनलाइन असेसमेंट अच्छा गया था और मतलब किसी डिफरेंट जैसे पुणे लोकेशन पे आ गया टेस्ट, वो इंटरव्यू का मेल, और यहाँ पे कोलकाता के लिए नहीं आया, अदर रीजन के लिए नहीं आया, तो ऐसा हो सकता है या फिर मतलब एक साथ ही सब कुछ प्रोसेस होता है, कुछ डिले वगैरह हो सकता है क्या? डिले तो होता रहता है, बहुत हाँ हाँ। डिले होता है, सेम रीजन में भी डिले होता है। ओके। मेरे कुछ हाँ दोस्त थे जिन्होंने 4 मई को एग्जाम दिया था, हाँ। फिर भी उनका इंटरव्यू सितंबर में हुआ है। ओके, और मैंने 6 मई को एग्जाम दिया था और मेरा इंटरव्यू 20 जून को हुआ। मतलब तो डिले हो सकता है बट आपको इंटरव्यू का आ गया अगर आप शॉर्टलिस्ट हो बिल्कुल, जाते हैं तो। ओके। बिल्कुल। और टीसीएस तो कर ही लेती है, मतलब है उनके हम्म। पास रिक्वायरमेंट तो। और जब मैं
2024 में पास आउट हो रहा था, हाँ टाइम पे तो थोड़ा ज़्यादा ही रिसेशन का वो सब था। हाँ हाँ। और दिसंबर या फिर दिवाली के टाइम में भी डाउटफुल था कि हायरिंग होगी या नहीं। यस ये यस। ये ये एनक्यूटी या फिर टेक महिंद्रा की जो होती है टेस्ट, या हाँ फिर हाँ कोई भी सर्विस बेस्ड कंपनी है, तो मेरा तो टीयर 3 था। तो हाँ। मुझे उसके अलावा कोई ऑप्शन था नहीं, तो मेरा ऐसा था कि प्रिपेयर करूँ कि नहीं अभी इसके लिए, कि ऑलमोस्ट हाँ 23 के लिए टीसीएस ने बहुत ही कम हायर किया कम था। हायर किया था। तो और दिसंबर में ऐसे यूट्यूब पे वीडियो आते थे, लोग डालते थे कि टीसीएस इनक्यूटी, और खुद हमारे भैया ने भी डाला था के एन हाँ अकेडमी के, हाँ टीसीएस इनक्यूटी एक ऐसा सपना है वो अभी पूरा नहीं हो सकता। दिसंबर में डाला था, हाँ और हाँ। मार्च के एंड में उनने डाला कि फ्री इनक्यूटी होगी। हो गया अनाउंस, हाँ। तो जिन्होंने एग्जाम के मतलब नोटिस से आने से पहले प्रिपेयर थे, उनका अच्छा हुआ, उनका ओके ओके। सिलेक्शन हो गया कुछ। वो पहले से क्योंकि कभी वो अभी क्या है कि आप टीसीएस का देखेंगे, टीसीएस ने 24 और 23 वालों को हटा के अब ओनली वो स्पेसिफिक पे आ गए हैं 25, क्योंकि अब ऑलरेडी निकल चुका है। ओ, अब वो आगे भी नहीं आ सकते हैं, बट जो पेड एनक्यूटी होता है, तुमने मेंशन किया तुमने पेड एनक्यूटी भी दिया था, तो वो हाँ, उसका कुछ ये डिफरेंस होता है क्या? मतलब फ्री एनक्यूटी का चांस ज्यादा रहता है, फिर उसमें कुछ प्रॉफिट मिलता है आपको, कुछ मिला पेड एनक्यूटी में? पेड एनक्यूटी में मैं बोलूंगा कि आपको बस एक आइडिया लग जाता है हम्म कि एग्जाम कैसे होगा, प्रोसेस हम्म। कैसी रहेगी। तो मतलब, बट मैं कहूंगा कि टीसीएस उससे हायर नहीं करते, ऑलमोस्ट नहीं करते। ऑलमोस्ट यस। हाँ, अपन मतलब कह सकते 90% चांसेस है वो नहीं करेंगे हायर, कितना भी अच्छा कर लो तुम हाँ उसमें। हाँ। अगर रिक्वायरमेंट है तभी वो पेड एनक्यूटी से हायर करते हैं। नहीं तो टीसीएस में कैसा है कि उनका एक प्रॉपर स्ट्रक्चर बन चुका है कि उनको आईटी में कितने लोग चाहिए, बीपीएस में कितने लोग चाहिए, और वो उस हिसाब से फ्रेशर की हायरिंग करते हैं। एमएनसी ओके। कंपनी है, मार्च तक क्वार्टर तक सब कुछ डिसाइड हो जाता है, उसके हिसाब हाँ से हाँ। करंट ईयर की ही ग्रेजुएशन वालों का हायर करते हो। ओके तो ओके। सबको एक ही चांस मिलेगा। एक ही चांस मिला, जैसे अभी एक साल में 24 के लिए आया था, तो अब 25 में तो 25 के लिए आएगा, अब नेक्स्ट जो हाँ होगा वो डिफरेंट बैच वालों को वो अलाउ कर देंगे। हाँ, 25 को ये चांस गया तो फिर से चांस नहीं है। ओके, सो मतलब जैसे कि मैं आप डाउट बहुत सारे स्टूडेंट्स का ऐसा था कि डिले वाला, बहुत सारे स्टूडेंट पूछते हैं कि हमारा नहीं आया, कि हमें आएगा। तो गाइस आपको यहाँ पे चिंता करने की जरूरत नहीं है, अगर आपका डिले होता है बट इट विल कम, डेफिनेटली आपको इंटरव्यू मेल आने वाले हैं। सो ये चीज और आपको क्लियर हो गया। हम्म। तो ज्वाइनिंग लेटर के साथ भी होता था। हाँ। हाँ, हमको मुझे ऑफर मिल गया था जुलाई में, 7 जुलाई ओके को ओके। मुझे ऑफर लेटर आ गया। हाँ। और मेरी ज्वाइनिंग अभी 2 महीने पहले हुई है, ओके, मतलब ट्वेंटी ज्वाइनिंग फोर्थ डिले मार्च हुआ था। तो कम से कम 9-10 महीने का गैप तो था। हाँ। बट जब मैं इंटरव्यू देने गया था टीसीएस का 20 जून को, हम्म। तो उससे पहले मैं एक स्टार्टअप में ऑलरेडी वर्किंग था। ओके। जून में मैं ऑलरेडी एक फुल टाइम हाँ। वर्किंग था, वहां से गया। ओके। सो तुम्हारा जो मेल आया था, राइट, सो यू मेंशन दैट जून में तुम्हें मेल आ गया था इंटरव्यू के लिए। सो टीसीएस के इन ऑफिस ही इंटरव्यूज होते हैं, राइट? इन ऑफिस ही होते हैं, कभी कभी कॉलेज में भी कंडक्ट करते हैं हाँ, वो। ऑन कैंपस में अगर किसी ने अप्लाई किया होगा इनको ऑन कैंपस के थ्रू, तो कॉलेज में कंडक्ट हो जाते हैं। और ऑफ कैंपस को भी अगर उन्हें मिल नहीं रहा तो हम्म। कैंपस को भी वो टाइप करके उधर भी शेड्यूल कर सकते हैं अभी। ओके ओके ओके, मतलब वो एक क्या पर्टिकुलर करते हैं लोकेशन भेज के। वो क्या करते हैं हाँ कुछ ऑफ कैंपस वालों को वो लोकेशन दे देंगे कॉलेज का, हाँ और कॉलेज में से जो लोग शॉर्टलिस्ट हुए हाँ ऑन कैंपस वाले, हाँ। दोनों का सेम डे पे और हाँ। कभी रख देंगे इंटरव्यू। ओके, मोस्ट ऑफ द मतलब केसेस में उस कॉलेज कैंपस में, उस रीजन पे, उस कॉलेज हाँ, कैंपस में वो बुला लेते हैं। बुला लेते वैसे ओके ओके। करके। मुझे तो ऑफिस में ही आया था, हाँ हाँ। बट कुछ दोस्तों को जिन्होंने ऑफ कैंपस दिया था कॉलेज का आया था। हम्म। और कॉलेज वालों को दो चांस मिलते हैं कभी हाँ कभी, हाँ हाँ। एक तो ऑफ कैंपस भी और ऑन कैंपस भी, जिनका ओके। अच्छा कॉलेज है। हाँ हाँ। तो अभी तो तुम्हारा जो इंटरव्यू हुआ था ना, तो जैसे ऑफ कैंपस इंटरव्यू, क्योंकि करेंटली अभी क्या है, टीसीएस ने मेल वगैरह भेजना स्टार्ट कर दिया और इंटरव्यू वगैरह अभी चल रहे हैं, तो बहुत सारी स्टूडेंट्स के ऐसे क्वेश्चन आए कि किस टाइप के क्वेश्चंस वो पूछते हैं और कैसे इंटरव्यू होता है, मतलब कितने लोग वहां पे रहते हैं इंटरव्यू में, और मतलब कुछ एक्सपीरियंस तुम्हारा तुम्हारा कैसे इंटरव्यू हुआ था और किस टाइप के क्वेश्चंस वो रखे थे, मतलब लेवल क्या था इंटरव्यू का, हार्ड मीडियम इजी क्या था, और इंटरव्यू क्वेश्चंस। हेलो एवरीवन। सो इस वीडियो में हम टीसीएस डिजिटल के इंटरव्यू एक्सपीरियंस को शेयर करने वाले हैं, बट उससे पहले आप यहाँ पर इंटरव्यू के जो नोट्स हैं उसमें आप एनरोल कर सकते हो, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी, इसमें सभी नोट्स अवेलेबल हैं। ये आपकी प्रिपरेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। यहाँ पर आपको
एक ई बुक भी मिल जाएगी, ऊप्स के नोट्स हैं, प्रोग्रामिंग के नोट्स हैं, एसटीएल कलेक्शन फ्रेमवर्क के नोट्स हैं, एचआर क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाएंगे, डीएसए थ्योरी, प्रोजेक्ट बेस्ड क्वेश्चन, सीएस फंडामेंटल्स, एसक्यूएल क्वेरीज, कंप्यूटर साइंस, कोडिंग शीट, सब कुछ आपको मिलने वाला है। देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स टू प्रिपेयर। ऑल्सो ई बुक आपको मिल जाएगी जिससे आप कम से कम टाइम में भी यहाँ पर प्रिपेयर कर सकते हो अपने टीसीएस के इंटरव्यूज के लिए। सो लिंक इसकी मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। आगे चलते हैं वीडियो की तरफ। क्या थे, किस तरीके से स्टार्ट हुआ था? तो मैं डिटेल में बताना चाहूँगा कि हाँ। अगर तुम्हें शॉर्टलिस्टिंग का मेल आया तो तुम्हें फुल्ली प्रिपेयर रहना है, क्योंकि ओके। इंटरव्यू का मेल तो 2 दिन पहले ही आएगा। हम्म। सरप्राइजिंगली कभी भी आ सकता है, तो तुम्हें हाँ। प्रिपेयर रहना है। और इंटरव्यू के दिन जब तुम जाओगे, तुम्हें वहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और चेकिंग के बाद, हाँ। जो बेसिक डॉक्यूमेंट्स है उनकी चेकिंग के बाद तुम्हें एक टोकन मिलेगा। ओके। तो टोकन के हिसाब से एक एक मतलब जो पैनल है वो तुम्हें मिल जाएगा। ओके। तो वहाँ पर बहुत सारे पैनल होते हैं, तो एक टोकन के हिसाब से तुम्हें वो बुला लेंगे इंटरव्यू ओके। के लिए। हाँ। तो सबसे पहले मेरा जब मैं सुबह गया था, तो तीनों कैटेगरी के कैंडिडेट साथ ही थे, प्राइम, डिजिटल और निंजा वाले। हाँ। तो मेरा पहला इंटरव्यू हुआ, उसमें 2 लोग थे। तो एक मैनेजरियल इंटरव्यू के क्वेश्चन पूछते हैं, हाँ। और एक टेक्निकल पूछते प्योर। तो ओके। दोनों इंटरव्यू साथ में होते हैं। फिर के बाद भी शॉर्टलिस्टिंग वही वहीं पे हो जाती है रेटिंग के हिसाब से। फिर एचआर होता है। कुछ लोगों का ऐसा था कि टेक्निकल और मैनेजरियल के बाद उनको घर जाने को कहा, हाँ। हाँ। उन्हें एचआर इंटरव्यू उनका हुआ नहीं। ओके। तो जब मैं एंटर किया, तो उसके बाद उन्होंने मुझे रिज्यूमे पूछा। मैंने मेरी हार्ड कॉपी दी रिज्यूमे की। हम्म। उसके बाद इंट्रोडक्शन पूछा। इंट्रोडक्शन अच्छे से करके जाना चाहिए। उनको प्रॉपर लगना चाहिए कि इसको खुद के बारे में सब कुछ मालूम है, अगर हाँ। निंजा का कैंडिडेट है तो। हाँ। तो आपको ज़्यादा वो हार्ड लेवल का इंटरव्यू नहीं होगा। हम्म। तो इंट्रोडक्शन पूछा, फिर रिज्यूमे देखा। रिज्यूमे में जो भी स्किल्स मेंशन है, हाँ। वो सब देखे और पूछा कि इंटर्नशिप कहाँ से किए हो, इंटर्नशिप में क्या-क्या एक्सपीरियंस मिला, ये प्रोजेक्ट बनाया है तो प्रोजेक्ट के ऊपर थोड़े बहुत क्वेश्चन पूछे। प्रोजेक्ट अच्छे से प्रिपेयर करके जाओ। ओके। जो भी किया है फाइनल ईयर में किया हो या फिर रिज्यूमे में जो भी डाला है तो प्रिपेयर करके जाओ। उसके बाद वो तो ज़्यादा टेक्निकल में जाते नहीं है। ओके। कुछ-कुछ निंजा कैंडिडेट्स के जिनका रिज्यूमे वैसा होता है। अगर तुम कोर ब्रांच से हो, तो तुम्हें वो आईटी का कुछ ज़्यादा पूछेंगे भी नहीं। ओके। तो तुम्हें वो उसकी टेंशन नहीं लेनी अगर इलेक्ट्रिकल या फिर मैकेनिकल से हो तो। हाँ। मैं हाँ। तो आईटी से था, तो मुझे उन्होंने 2 कोडिंग क्वेश्चन पूछे। एक रोटेटेड सॉर्टेड अरे वाला होता है, वो वाला क्वेश्चन पूछा। हाँ। और एक नॉर्मली था। और कुछ-कुछ लोगों को तो बस स्वैपिंग वाले ही क्वेश्चन पूछे कि स्वैपिंग कर दो विदाउट थर्ड वेरिएबल। ओके। और हाँ। बहुत ही प्राइम नंबर, ऐसा नॉर्मल फैक्टोरियल, बहुत ही ईज़ी क्वेश्चन पूछे। 2 कोडिंग क्वेश्चन, 2 एसक्यूएल की क्वेरीज़ पूछी। ओके। और क्वेरीज़ भी मतलब मैं बोलूँगा कि बेसिक टू मीडियम ही एसक्यूएल करके, ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। बट ये है कि डीबीएमएस का पूरा थ्योरेटिकल तुम्हें मालूम होना चाहिए। ओके। और उसके बाद ये तो टेक्निकल वाले सर ने पूछा। उसके बाद जो मैनेजर वाले थे, तो उन्होंने ज़्यादा लीडरशिप पे फ़ोकस किया। मैंने जो प्रोजेक्ट किया था फाइनल ईयर में, तो तुमने कहाँ पे लीडरशिप स्किल का यूज़ किया? क्या-क्या चैलेंजेस फेस हुए? तो तुम कैसे सिचुएशन को हैंडल करते हो? सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन पूछे हाँ, मोस्टली। सिनेरियो बेस्ड। ओके। हाँ, तो वो भी प्रिपेयर करके जाओ तुम। उसमें प्रिपेयर ऐसा करो कि तुम नेचुरली जितना आंसर दे पाओगे, उतना दो। ऐसे प्रिपेयर करो। तुम्हें खुद से ऐसा कि क्वेश्चन लिख के रट्टा मार के ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है। बस हाँ। जो भी नेचुरली आता है वो बोल दो, कॉन्फिडेंटली, ओके। तो हो जाए। टेक्निकल में इतना ही हुआ था, और कम से कम 35 मिनट्स टू 40 मिनट्स इंटरव्यू ड्यूरेशन था। ओके। सो बेसिकली तुम्हारे मतलब तुमने बोला कि तुम्हारा टेक्निकल प्लस मैनेजर जो राउंड था वो एक ही पैनल में हुआ था, राइट? वहां पे दो लोग बैठे थे हाँ, और डायरेक्टली उन लोगों ने ही तुम्हारा इंटरव्यू स्टार्ट किया। और अल्टरनेट क्वेश्चन पूछते हैं। ऐसा नहीं कि पहले सर बंदा पूछेगा और फिर बाद में दूसरा। हाँ। हाँ। दोनों कभी-कभी साथ में भी साथ पूछते हैं। में पूछ सकते हैं। इन्होंने कभी टेक्निकल प्रोजेक्ट पे कुछ किया, हाँ। तो मैंने बता दिया मेरा उसमें क्या रोल था, हाँ। हाँ। तो मैंने ये चीज़ हैंडल की। तो हाँ। वो फिर उस पे काउंटर क्वेश्चन करेंगे कि वो अच्छा। कैसे हैंडल की, वो हाँ, तो मतलब सिचुएशन में तुम। मैनेजर फिर अपने तरीके से कुछ लीडरशिप का कुछ क्वेश्चन सिनेरियो बेस्ड पूछ सकते हैं। हाँ, ओके। बट ज़्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है। जितना रिज़्यूमे में डाला है, अगर उतना तुमको आता है,
तो ऑलमोस्ट हो जाएगा। अब कॉन्फिडेंट रहना हाँ, चाहिए बस। तो यहाँ पे एक डाउट है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये ऐसे डाउट रहता है कि जो रेज्यूमे वो मतलब स्टार्टिंग वो लोगों ने अप्लाई किया है या फिर प्रोसेस किया है, उनके डिफरेंट रिज्यूमे हो सकते हैं कि उनकी डेटाबेस में रिज्यूमे सेव रहता है या फिर मतलब दूसरा रिज्यूमे लेके जा हम्म सकते हैं हम्म। कि इंटरव्यू के लिए। ये तो बहुत लोगों का डाउट होता ही हाँ। होता है। ये बट ऐसा है कि तुम जो हार्ड कॉपी लेके जाओगे उस पे पूछेंगे। अच्छा। उसका कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ओके। उनके पास मतलब कोई कॉपी हाँ, वॉपी कॉपी होती नहीं नहीं है। रहती है, बस तुम जो कुछ भी नहीं जाओगे होता। वो ले उस पे जो होगा। हार्ड कॉपी लेके जाओगे हम्म। और अच्छी लेके जाना, मतलब कि हाँ। फॉन्ट उसका सही हो। हाँ। और ट्राई करना कि कलर कॉपी लेके जाओ, ब्लैक एंड ओके। व्हाइट भी चलेगी बट हाँ, ट्राई करो कि कलर कॉपी लेके कलर जाओ। कॉपी और ओके। जितना कम डालना चाहोगे उतना अच्छा रहेगा। हाँ, ताकि इंटरव्यू एक ही थोड़ा सा लेंदी नहीं हम्म हो पाएगा। ये तो सबको मालूम है कि एक ही पेज का बनाना है एक ही ज्यादा। पे हाँ। हाँ, एक ही पेज का कम डिटेल्स डालो। और टेक्निकल में जितना आता है उतना ही डालो, ज्यादा मत डाल देना। ओके। ये तो मैंने लीड कोड का सब थोड़ा ज्यादा डाला तो मुझे कोडिंग के 2 क्वेश्चन पूछे, नहीं तो हाँ। मैं तो बता रहा होगा आपको, कुछ लोग को बस स्वैप ही करना पूछ लिया। कुछ लोग ओके। को स्टार पैटर्न प्रिंट कराना पूछ रहे। ओके। तो मतलब सो मतलब जो कोडिंग के क्वेश्चन थे वो कंपाइलर में वहां पे कोड करने को बोले थे या फिर पेन कॉपी पे आपको पेन मतलब पेपर पेन पेपर पे मतलब वो लोग, लॉजिक लिखना था, राइट? हाँ, वो प्रॉपर पूरा सिंटैक्स लिखने की जरूरत नहीं है, हाँ। सूडो कोड जैसा लिखोगे तो चल जाएगा। ओके। तो एसक्यूएल क्वेरीज भी आपको व्हाइट पेपर पे लिखनी पड़ती है, हाँ। पेन और पेपर वो देंगे। हाँ। आपको बस रिज्यूमे लेके एंटर करना है। ओके। प्रॉपर फॉर्मल्स पहन के जाओ हम्म। और बस बैठ जाओ उधर। वो आपको पेन पेपर देंगे और इंटरव्यू के टाइम वो पेन पेपर पे अपना लिखना पड़ेगा। ओके, मतलब वहां पे एक बेसिक लॉजिक टाइप का आपको लिखना होता है कि इसमें ऐसे ऐसे अप्रोच होगा और इस तरीके से कोड रन हाँ, करेगा, आपको प्रॉपर कंपाइल नहीं करना जैसे है। हम लोग सुडो कोड लिखते हैं ना कि हाँ। प्रॉपर लूप लगा दिया, ये यस। लूप यहाँ से इनिशियल है। हाँ। आपको सब कुछ सिंटैक्टिकली राइट नहीं लिखना है बट हाँ। ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सुडो कोड सूडो कोड जैसा हमें वहां पे हाँ। सिनेरियो बताना ऐसा होगा। ऐसा नहीं कि ऊपर लाइब्रेरी इंपोर्ट हाँ कर रहे हैं सब। हाँ। ओके ओके। ऐसे ऐसे सब इस मतलब चीज की बेसिक जरूरत नहीं। अप्रोच बताना है कि लॉजिक कैसे यहाँ पे वर्क होगा उसका। अच्छा। ओके, सो उसके बाद तुम्हारा टेक्निकल में दो कोडिंग के क्वेश्चन पूछे थे और फिर उसके बाद एसक्यूएल की क्वेरी पूछी थी और फिर उसके बाद बिहेवियर मतलब अम, ऑलमोस्ट निंजा का ऐसे ही होता है, अगर टोटली हाँ हाँ, रेज्यूमे बेस्ड होता है, राइट? रेज्यूमे बेस। ओके। और अगर डिजिटल का भी और प्राइम का भी मैं बता सकता हूँ हम्म। क्योंकि मेरे दोस्त ही थे उसके हाँ साथ। हाँ हाँ हाँ। तो मेरे दोस्त का डिजिटल से डिमोशन होकर उसको निंजा मिला बाद में। हाँ हाँ। तो उनका इंटरव्यू ऐसा होता है डिजिटल का कि तुमने जो टेक्नोलॉजी भी डाली है उसमें, उस पे भी तुम्हें डीप में थोड़ा लेके चले जाएंगे। ओके। ने फ्रंट एंड डाला है सपोज रिएक्ट जावास्क्रिप्ट, तो उसको पूछेंगे वर्चुअल डॉम क्या है। और रिएक्ट के कुछ क्वेश्चन पूछेंगे, प्रोजेक्ट में कैसे यूज किया। हाँ। जावास्क्रिप्ट में पूछ लिया, होस्टिंग क्लोजर। और कोडिंग क्वेश्चन मतलब इतना बेसिक नहीं पूछेंगे, कोडिंग क्वेश्चन तुम्हें एडवांस भी पूछ सकते हैं। हम्म। तो उनको लिंक लिस्ट टैग, इस पे भी क्वेश्चन, मतलब थोड़ा उसको सा लेवल बढ़ा लिंक देते हैं वो। लेवल बढ़ा देते हैं, उसको हाँ। लिंक लिस्ट रिवर्स करने के लिए बोला था, तो ओके। मतलब लेवल थोड़ा बढ़ जाए। बढ़ जाता मतलब टेक्निकल में थोड़ा सा ज्यादा वो चले जाते हैं डिजिटल और हाँ, प्राइम के लिए। बट इंटरव्यू ड्यूरेशन में बोलूंगा उनकी भी ज्यादा होती नहीं है। हाँ। 35 से 40 मिनट लेके चलो, कुछ कुछ लोग का तो 20 मिनट्स में भी इंटरव्यू हो जाता है। ओके। वो तो डिपेंड करता है पैनल पे, वो कितने इंटरेस्टेड है आप। हाँ हाँ। कुछ कुछ लोगों का 5 मिनट इंटरव्यू हुआ, उनका एचआर इंटरव्यू हुआ ही नहीं। ओके, मतलब ऐसा भी हो सकता है कि अगर कोई नहीं कर पा रहा है प्रोसेस तो डेफिनेटली वहीं से फिर हाँ, वो कभी हटा कभी देते तो सेल्फ इंट्रोडक्शन के बाद 1-2 क्वेश्चन पूछ के भी कभी कभी हैं। हाँ, ठीक है, थैंक यू फॉर कि योर टाइम बोल देते। स्टार्टिंग में वो थोड़ा सा लगता है उनको कि अगर नहीं कर पा रहा है प्रोसेस तो वहीं पे। और वन डाउट ऑल्सो कि मतलब जैसे आपका फर्स्ट हुआ, फर्स्ट आप गए और हम्म, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वहां पे तुमने बोला कि होता है, हाँ अगर हाँ। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे कोई इशू वहां पे आता है तो क्या वहां हम्म। पे इंटरव्यू के लिए हमें चांस मिलता है या फिर वहां से चांस जा सकता है क्या? ऐसा हो सकता है क्या? डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम ज़्यादा कुछ तो डॉक्यूमेंट वो मांगते नहीं है। हाँ। 10th 12th मार्कशीट हम्म। और ग्रेजुएशन का तो कुछ पूछते नहीं क्योंकि आप ऑन गोइंग कैंडिडेट रहते हो। हाँ। ओके। बस इतना ही रहता है और बाकी कुछ ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स तो होते नहीं है। वो तो ओके। आपका ऑफर लेटर के बाद बैकग्राउंड वेरिफिकेशन पूरा होगा, उसमें ज़्यादा लेंगे डॉक्यूमेंट्स। ओके, तो मतलब इतना कोई प्रॉब्लम नहीं होता है वहां पे, हाँ, पैनल में प्रॉब्लम मिल नहीं। जाता है। और प्रॉब्लम होगा भी, कुछ कुछ लोग कॉपीज लाना भूल गए थे, हाँ। तो उधर एचआर लोग हेल्प आउट कर देंगे। बट मैं बोलूंगा कि
आप एज अ कैंडिडेट खुद से प्रिपेयर हाँ, हो। प्रिपेयर रह के जाए, थोड़ा सा इम्प्रेशन ऐसा कुछ, रहे कि हाँ, हाँ, यू आर रेडी। प्रॉपर होना चाहिए कि आप इंटरव्यू के लिए आए। कुछ लोग रिज्यूमे भी लेके नहीं आए थे, बोले आपके पास सॉफ्ट कॉपी है हमारे। हाँ, ओके ओके। तो मतलब बी प्रिपेयर कि सब कुछ प्रिपेयर। आपको लेके जाना है, डॉक्यूमेंट जो पर मिनिमल रिक्वायरमेंट होती है। सबको नहीं मिलती अपॉर्चुनिटी, मिली है तो प्रॉपर से हाँ, उसका यूज करो, ग्रैब करो यस, उसको। ओके। सो इट वाज लाइक वेरी नॉर्मल, लाइक और तुम्हारा जो इंटरव्यू एक्सपीरियंस रहा था कि हाँ, उसमें नॉर्मल कोडिंग के क्वेश्चन पूछे थे। और मैं प्राइम हाँ का भी थोड़ा आइडिया देना चाहूँगा। हाँ। तो मेरे एक दोस्त को मतलब ऑलमोस्ट उसने 400 के आसपास लीड कोड पे कोडिंग क्वेश्चन किए होंगे। और उसका प्राइम हुआ था, उसका प्राइम में। तो उसको लाइक वो डाइस्ट्रब एल्गोरिदम है ना, हाँ ट्री हाँ, वाला, यस, वो पूछा था, वो इम्प्लीमेंट करने को बोला था डायरेक्ट। ओके। और मशीन लर्निंग के प्रोजेक्ट से तो उस पे बहुत ही डीप में वो चले गए कि न्यूरल नेटवर्क कैसे काम करता है प्रॉपर। मतलब टोटल नेटवर्किंग के टेक्निकल थोड़ा सा और हाई कर देते हैं वो लेवल। टेक्निकल और हाई कर देते हो। ओके। ड्यूरेशन फिर भी 40-45 मिनट्स से ज़्यादा किसी का नहीं होता, 45 मिनट से अंदर ही, 30 मिनट्स टू 45 लेके चलो। तो 45 हाँ मिनट में जब वो अगर निंजा में वो इजी क्वेश्चन पूछ रहे थे, उसी टाइम ड्यूरेशन में वो डिफिकल्ट क्वेश्चन वो पूछ लेते हैं डिफरेंट प्रोफाइल हाँ वालों हाँ, से। डिफरेंट प्रोफाइल वालों से। ओके। और निंजा का कभी कभी कम टाइम में ही हो जाता है, हाँ हाँ। मिनट से 40 मिनट तक। वो ओके। तो आप पे डिपेंड करता है और पैनल पे, वो कैसे क्वेश्चन पूछ रहे हो और आप कितना आर्टिकुलेट कर पा रहे हो उस हाँ, क्वेश्चन को। यस। उनको पसंद आ रहा है तो वो लेते, आगे आगे क्वेश्चन पूछते रहते वो। हाँ हाँ। अगर नहीं आ रहा होता तो दे कैन क्लोज द इंटरव्यू एंड यू कैन गो। हाँ, कभी यस। कभी पैनल इंटरेस्टेड हो जाता है हाँ हाँ। कैंडिडेट, क्योंकि बहुत सारे निंजा कैंडिडेट ऐसे भी हो सकते हैं कि मतलब वो टाइम पे उनसे कोडिंग क्वेश्चन नहीं हुआ, बट कुछ को रहता है मतलब टेक्निकल आता है, आता या है। फिर मैं बोलने में अच्छे हैं, तो वो बात करते हैं, तो मतलब एक तो प्रॉपर इंटरव्यू डिस्कशन खींच टाइप का जाता वहाँ पे हाँ हो जाता है स्टार्ट। है, इंटरव्यू खींच जाता है। ओके। सो लाइक इट वाज नॉर्मल पूरा इंटरव्यू होता है, स्मूथ तुम्हारा गया, तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं आई स्टार्टिंग से एंड तक, हाँ, तुम्हारा कुछ डिले नहीं तो हुआ। और ऑलमोस्ट हाँ। 1 to 2 वीक्स के अंदर फिर ऑफर लेटर का भी मैसेज आ जाएगा। ओके, मतलब आफ्टर इंटरव्यू डायरेक्टली उसके बाद कुछ वेरिफिकेशन नहीं होता है, फिर लास्ट स्टेप आपका ऑफर लेटर होता है, राइट? हाँ हाँ, उसके ओके। बाद मैक्स टू मैक्स एक गूगल फॉर्म आ जाएगा। हम्म। उसमें बस पूछेंगे कि आपका कोई बैकलॉग है या नहीं। वो तो रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस में भी पूछ लेते हाँ हैं हाँ हाँ कि आपका 2 साल से ज़्यादा ईयर गैप नहीं होना चाहिए, हाँ ऑनगोइंग बैकलॉग नहीं होना चाहिए, एक्टिव बैकलॉग नहीं होना चाहिए। हाँ। उसका ही सेम वो फिर से पूछ लेते हैं ओके, मतलब आफ्टर इंटरव्यू सिलेक्शन। अंटर आफ्टर इंटरव्यू सिलेक्शन। और फिर ओके, वो मेल के बाद मतलब ऑफर लेटर तो नेक्स्ट स्टेप पोर्टल पे दिख ही जाता है। देखिए आता है। मेल बाद में कभी कभी आ जाता है। नेक्स्ट ओके। स्टेप पे आप आपको अगर है तो कंटिन्यूअसली चेक करते रह सकते हो आप। सो मतलब इंटरव्यू होने के बाद अगर आपको वो मेल आ गया तो इट मीन्स यू आर सिलेक्टेड, मतलब ऐसा कैसे पता लगता है कि आप वो रिजेक्शन का मेल भेजते हैं क्या इंटरव्यू के बाद कि यू आर रिजेक्टेड और समथिंग? रिजेक्शन का तो मेल आता ही नहीं है। ओके, फिर कैसे हाँ, पता लगता है कि आपका इंटरव्यू नहीं सक्सेसफुल रहा? तो आप एक काम कर सकते हो कि आपके साथ जिन लोगों का इंटरव्यू था उस हाँ दिन, तो उस दिन उनसे आप कनेक्ट कर सकते हो। हाँ। उनसे किसी से लिंक्डइन पे कनेक्ट करके रह सकते हो, या फिर कांटेक्ट नंबर ले सकते हो। हम्म। और फिर बाद में आप जब भी अपनी यूट्यूब चैनल पे, तो आपके तो आ जाता है कि हाँ जब भी अपडेट आ जाएगा तो आप उनसे पूछ सकते हो, डीएम कर सकते हो कि मैंने तो वैसे ही किया था। हाँ चार हाँ पांच लोगों के साथ लिंक्डइन पे कनेक्ट हो चुका था। हाँ। तो हम लोग आपस में कभी कभी पूछ लेते थे कि कोई अपडेट आया कि नहीं आया, ओके अंटिल ज्वाइनिंग लेटर एज वेल। ओके। तो चांसेस हो जाते हैं, आप एक रीजन से एक ही दिन और एक ही रोल का इंटरव्यू दे रहे तो हाँ, तो आपको भी कनेक्शन उसी बन टाइम जाते पर। वहाँ पे, हाँ। सो मतलब इंटरव्यू के कितने दिन बाद तुम्हारा मतलब ज्वाइनिंग लेटर आया था? इंटरव्यू के कितने दिन बाद मतलब ऑफर लेटर का मेल आया था, रिजल्ट? इंटरव्यू के बाद तो मैं बोलूँगा 2 हफ्ते में ऑफर लेटर आ गया था, हाँ हाँ। क्योंकि 20 जून को मैंने इंटरव्यू दिया था हाँ। और 7 जुलाई को मुझे ऑफर लेटर आ गया था। ओके। और ज्वाइनिंग लेटर तो अभी आया मार्च में, 24 मार्च को। मतलब एक बार और अगर सिलेक्शन का ऑफर लेटर का आ जाता तो कोई मतलब वो दिक्कत नहीं होती है, बट उसके बाद थोड़ा सा ज्वाइनिंग तीस वगैरह का डिले हो सकता है। वो तो आप टीसीएस पे छोड़ दो। हाँ, ओके। वो तो टीसीएस है तो मतलब टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मैं तो ऑलरेडी वर्किंग था, तो मैं पूरे
पूर्ण प्रोबेशन में काम किया और लास्ट डे पे रेजिग्नेशन डाल के ओके फिर छोड़ के टीसीएस में हूँ अभी ज्वाइन कर। ओके तो ओके गुड। जनवरी तक हाँ तो मैं भी वर्किंग था। तो मतलब आप ऐसा भी कर सकते हो। आप अगर टीसीएस में भी सिलेक्शन हो गया तो फिर रुको मत, क्योंकि आपने ऑलमोस्ट इतना सब कुछ प्रिपेयर कर लिया है। आपको एप्टीट्यूड भी अभी आ रहा है, कोडिंग भी थोड़ा बहुत कर ले हो, और टेक्निकल टर्म्स पे भी आपने पॉलिश कर रखा है। तो रुको मत, बाकी भी कंपनीज का इंटरव्यू देते रहो। हाँ हाँ, हमारे टाइम पे ज्यादा कुछ बाकी कंपनीज ने हायर नहीं किया था, एक्सेंचर ने थोड़ा बहुत किया था, बट वो थोड़ा मतलब वुमेन्स की थोड़ी ज्यादा हायरिंग, एक्सेंचर का तो हाँ रैंडम ही हो रहा था। यस बट यस। उसके बाद सितंबर में आपको टेक महिंद्रा का आएगा, बाकी हम्म। कंपनीज भी है। तो मैं कहूँगा कि वो ब्रेक मत करो अपनी कंसिस्टेंसी को। प्रिपेयर किया है तो कभी ना कभी यूज तो होगा हाँ ही हो उसको। गया, अगर स्मूथली प्रोसेस जा रहा है सो दी कैन ज्वाइन दी टीसीएस ऑल्सो। अगर आप पर्टिकुलर टीसीएस को ज्वाइन करना चाहते हो तो उसके लिए आप वेट भी कर हाँ सकते हैं, बट इट विल हैपन कि आपका पूरा सिलेक्शन प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद ऑफर लेटर वगैरह डेफिनेटली आएगा। हाँ, बिल्कुल आएगा, सब कुछ आ ओके जाएगा, टेंशन नहीं। ओके। सो लाइक इट वाज टोटल इंटरव्यू एक्सपीरियंस जिसमें तुमने पूरा डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया कि तुम्हारा टेस्ट कैसे हुआ था एंड इंटरव्यू। सो आपको कोई भी डाउट नहीं रखना है, लाइक ही एक्सप्लेन्ड एवरीथिंग कि किस तरीके से प्रोसेस होने वाला है और क्या क्या चीज़ें आपको प्रिपेयर करके रखना है अगर आप टेस्ट में बैठते हैं। स्पेशली इंटरव्यूज अभी चल रहे हैं तो इंटरव्यूज में कैसे आपको जाना है, और वहां पे अगर आप कोई भी डिले नहीं चाहते हैं, कोई भी ऐसा नहीं डाउट रखना चाहते हैं कि रिजल्ट कैसे आएगा, या फिर तो आप हम्म। कनेक्शन भी वहां पे बना सकते हैं बिकॉज टीसीएस नॉट सेंडिंग द रिजेक्शन मेल्स। और अब पर्टिकुलरली हाँ आपको एक चीज चेक करना है नेक्स्ट स्टेप पोर्टल, क्योंकि वहीं पे सब कुछ अपडेट होता है, राइट। तो वो आपको कंटिन्यूसली चेक करना है, जैसे आप प्रोसेस करते हैं इंटरव्यू के, आप किसी भी एक स्टेप में पार्टिसिपेट करते हैं वो आपको कंटिन्यूसली वहां पे चेक करना है। Okay, so this was the total interview experience of TCS Ninja, and thank you so much, Saraj, and you shared like great experience that will definitely helpful to our audience also. And next time also, if any opportunity will come, definitely we can connect also. या थैंक यू सो मच फ्रॉम माय साइड एज वेल। आई हैव फॉलोइंग योर चैनल Thank you. It's whole the pleasure to last us. year, because it is the only one hope for I think off campus people. Oh, thank If you. you It have is don't pleasure. have Okay, so we can stop now, and thank you guys. Thanks for watching this video.